तो आज हम परफॉर्म करने वाले हैं थेवेनिन्स थ्योरम। थेवेनिन्स थ्योरम परफॉर्म करने के लिए हम वर्चुअल लैब को यूटिलाइज करेंगे। वर्चुअल लैब इज़ द इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इट इज़ अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। वर्चुअल लैब को यूटिलाइज करके आप कोई भी प्रैक्टिकल जो आपके इंजीनियरिंग के है इसमें डिफाइन वो कर सकते हो। सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ द वर्चुअल लैब टू प्रोवाइड remote access to labs in various disciplines of science and engineering. So these are the disciplines for which the virtual lab is provided. So our topic, that is Thevenin's theorem, is given in the electronics and communication engineering because it is network related theorem. So in electronics and communication we will go to the electric circuit labs. So electric circuit lab we have, these are the practicals. So out of this we will go for the Thevenin's theorem. This is Thevenin's theorem. Theory is also explained. So we will perform Thevenin's theorem like this. We have supply voltage 10 and 20 volt and resistors 10 ohm, 20 ohm and 40 ohm. We want to find current in branch AB utilizing Thevenin's theorem. So first we will find the current by entering ampere meter in series with 40 ohm resistor, so that we can know what exactly the current is in this circuit. First we will find the current in AB branch. After that we will find current in AB branch utilizing Thevenin's theorem. So according to Thevenin's theorem we will replace the voltage sources with their internal resistance, that is short circuit, and we will remove the AB branch from this circuit. We will remove the 40 ohm resistor and we will measure the resistance across A and B. So this would be our Thevenin's equivalent resistance. Now to find the Thevenin's equivalent voltage source, we will remove the resistance from AB, and at terminal A and B we will find Thevenin's equivalent voltage. That would be our Thevenin's equivalent voltage source. So we will get the values like this. This is our Thevenin's equivalent voltage source, this is Thevenin's equivalent resistance, and at terminal A and B we will connect 40 ohm resistor back. So after connecting this resistor we will get the desired current. This current should match the current which is flowing in this circuit in AB branch. So let us perform this simulation. We will go to the simulator. This is the DC circuit simulation. Let us formulate our original circuit. So we will need 2 voltage supply, 3 resistors, and ampere meter. We will utilize non-contact ampere meter. So we will formulate this circuit according to schematic given. This one is the positive supply, blue is negative. So we will set the value of resistors, 10 ohm, this is 20 ohm, and this is 40 ohm. ये हो गया 40 ओम। वोल्टेज सोर्स हमारे है 10 वोल्ट एंड 20 वोल्ट, तो वो भी हम सेट कर दे रहे हैं। दिस इज 10 वोल्ट, यानी ये वोल्टेज सोर्स है 20 वोल्ट का। अभी हम कनेक्शन करेंगे, तो कनेक्शन के लिए हमें वायर्स की ज़रूरत पड़ेगी।
तो वायर्स ले लेते हैं। एक वायर इधर लगेगा, तो ये हमारा सर्किट रेडी हो गया। अभी इस ब्रांच में फ्लो हो रहा है करंट को हमें मेज़र करना है, तो ये कॉन्टैक्टलेस एम्पियर मीटर यूटिलाइज करेंगे जो हमें करंट की वैल्यू देगा। दैट वैल्यू इज 0.2857 एम्पियर। ये जो वैल्यू है वो हमें थेवेनिन्स थ्योरम अप्लाई करने पर भी मिलनी चाहिए, दैट इज अवर एम। तो ये हो गया नॉर्मल सर्किट डायग्राम। अभी हम इसमें थेवेनिन्स थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो थेवेनिन्स थ्योरम अप्लाई करने के लिए हमें पहले चाहिए थेवेनिन्स वोल्टेज सोर्स। तो थेवेनिन्स वोल्टेज सोर्स के लिए ये रजिस्टर को हम रिमूव करेंगे और एट टर्मिनल ए बी हम वोल्टमीटर कनेक्ट करेंगे। तो ये जो वोल्टेज मिलेगा वो हमारा हो जाएगा VTH। तो जो VTH है उसकी वैल्यू है 13.33 वोल्ट। जो वोल्ट मीटर में वैल्यू आ रही है वो है 13.33 वोल्ट। अभी हमें एट ए एंड बी टर्मिनल, ये दो टर्मिनल पे क्या चाहिए, रेजिस्टेंस की वैल्यू चाहिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। उसके लिए हमें सप्लाई को रिमूव करना पड़ेगा, दोनों ही वोल्टेज सोर्स को हम रिमूव करेंगे। इधर वायर्स कनेक्ट करेंगे शॉर्ट सर्किट के लिए। हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू ये दो टर्मिनल पे चाहिए। अभी इधर आप देखोगे तो रेजिस्टेंस कर मेज़र करने के लिए मल्टीमीटर या ओम मीटर दिया नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि हम वोल्टेज भी मेज़र कर सकते हैं, करंट भी मेज़र कर सकते हैं। तो हम एट ए एन बी वोल्टेज अप्लाई करेंगे और करंट मेज़र करेंगे। तो हमारा जो V/I होगा दैट वुड बी आवर रेजिस्टेंस फॉर द सर्किट डायग्राम, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। तो इधर हम ये कनेक्शन करेंगे, ये सोर्स को हम रिमूव कर देते हैं। तो ये वायर कनेक्ट कर देंगे इधर। और एक वायर इधर कनेक्ट करेंगे। सोर्स वोल्टेज की वैल्यू हम 20 रखेंगे।
या इन दिस केस हम 10 भी कर सकते हैं। हमें वैल्यू चाहिए रेजिस्टेंस एट टर्मिनल ए बी। सो ये 10 वोल्ट का सोर्स है। हम इस ब्रांच में करंट मेज़र करेंगे। तो हमारा करंट है 1.5 एम्पियर, वोल्टेज है 10 वोल्ट, करंट है 1.5 एम्पियर। तो 10 डिवाइडेड बाय 1.5 दैट वुड बी अवर आर इक्विवेलेंट। तो ये हमारा हो गया थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रजिस्टर। जो आर इक्विवेलेंट है उसकी वैल्यू होगी 10 डिवाइडेड बाय 1.5। अभी हम थेवेनिन्स की सर्किट बनाएंगे। तो उसके लिए चाहिए हमें वोल्टेज सोर्स। इस ब्रांच को हम रिमूव करेंगे, वोल्टेज सोर्स कनेक्ट करेंगे। वोल्टेज सोर्स की वैल्यू होगी, VTH की वैल्यू होगी 13.33। RTH है, उसकी वैल्यू है 10 डिवाइडेड बाय 1.5। तो ये हो गया 10 डिवाइडेड बाय 1.5 इज इक्वल टू 6.67। ये सब निकल जाएगा क्योंकि हमें इक्विवेलेंट नेटवर्क चाहिए फॉर थेवेनिन। ये भी निकल जाएगा, ये सोर्स भी रिमूव हो जाएगा। एम्पियर मीटर को साइड में कर देते हैं। ये टर्मिनल ए एंड बी है, वहाँ पे लगेगा हमारा जो एक्चुअल रजिस्टर था, दैट इज़ 40 ओम। तो हम 40 ओम को कनेक्ट कर देते हैं। अभी हम इस ब्रांच में करंट मेज़र करेंगे तो वो सेम है जो प्रीवियस नेटवर्क था, उतना करंट होना चाहिए। तो वो करंट हमें मिल रहा है 2856, 0.2856 एम्पियर। So hence we can prove that Thevenin's theorem is applicable this way.